Namaskar, मैं हूं मैत्री आपका therapist and trainer. I welcome all to my channel Speezy for Special Need. Yesterday we had a webinar over behavioral challenges and tantrum management among special needs children. Few parents request me to upload a video regarding it. So in this video we are going to discuss about all these things. Whenever we are talking about behavioral challenges, आपने कभी सोचा है कि behavioral challenges क्या है? What is the meaning behind it? We always say मेरा मेरा बच्चा ये behavior show कर रहा है, वो behavior show कर रहा है, but what is that? Behavior is nothing but a way of communication. Whenever we saw a behavior in anyone, that means the child wants to communicate something. For a simple example, आपने कोई मेरे घर पे आया है, मैं उसको अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, उसके पानी पूछ रही हूँ, उसका खाना पीना सब कुछ मैंने ध्यान रखा, पर मैं उसको ये नहीं बोला कि आप आए मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर मेरा जो बिहेवियर है उससे उसको ये पता चला कि हाँ मैं आई हूँ तो इन दिस हाउस ऑल पीपल आर हैप्पी. लाइकली जब हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, जैसे कि कोई हमें अगर इग्नोर करे, ये नहीं है कि वो हमको बोल रहा है कि तुम आए हो मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर योर प्रेजेंस इज नॉट वर्दी फॉर मी, वट एवर. The thing is that they are not communicating us, but their behavior send us some messages. So like this, whenever a special child so any kind of odd behavior, that means he or she sending some. There are lots of kind of behavior we saw in the children, that is they are on the floor, they are shouting, there may be some kinds of behavior like throwing, hitting, and all these things. Lots of behavior are there we found generally. Those are called behavioral challenges in special needs children. But another point I shared last class, that is there are two things that we need to consider while we are going for intervention. There are some behaviors who those are need immediate intervention. When there is some behavior that is harmful, that means the child is target to harm others or target to harm self, that behaviors need immediate immediate intervention. But sometimes those behaviors are okay, we can wait for them. Like I shared my experience about my child, that my child has developed a behavior from few months, that when he is angry he just stamp his feet loudly, and it's okay. I can understand he is showing the tantrum that way, but it is okay for few days. I can wait. If that is reduced spontaneously, we can wait for that. And another parent said me that is my child do the self talk when he is in a anger mode or any stress mode. That means okay, it's also okay. But when a child is trying to hitting the bang his head, like throwing the things, those things need immediate intervention. So there are two things we need to understand. Those behaviors need immediate intervention, and for those behaviors we can wait for a few times. That may be reduced spontaneously. As I already told about my child, I wait for 3 to 4 months, and now naturally I see this behavior, just I ignore those things, so those behaviors and I now reduce naturally. So this is the true point we also discussed in our webinar. Another thing we discussed about the most important thing, that is the meltdown and tantrum. We always listen the word my child is in tantrum in the therapy centers, all everywhere you listen these two words. And when we ask the parents, we parents share their answers, but most of the cases the parents don't know what is the difference between meltdown and tantrum. See, I can say my child showing a tantrum, but I cannot say my child showing a meltdown. I can say this is wrong, but I can say my child is in a meltdown condition. Meltdown is a condition. So let's try to understand what is meltdown and what is tantrum. If I talk about tantrum in a very simple word, tantrum means first things, the child want to control the environment. The child is demanding something. You are saying no. The child is asking. You are saying no. Now the child has to show the tantrum. That means for example mobile phone. एक बच्चा मोबाइल फोन मांग रहा है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो फिर मांग रहा है, मना कर रहे हैं, तो just the child started to showing the tantrum. Here the child wants to control the situation by showing some behavior that is not appropriate to the situation. That means to the not the situation. That means it's not appropriate to looking. हम लोग जैसे बोलते हैं जिद्दी, एक्सट्रीम लेवल का वो जिद्दी करते हैं, मुझे ये चाहिए वो showing throwing those things. Behavioral pattern is we will discuss how to manage those things. That is another thing. What I am talking now with, to understand what is tantrum, it is good or bad, how we will interpret control means what can intervention we can do for it, that is another part. But this is the tantrum, that is the child is showing. And another thing is that the child is conscious about the environment, means the child is no, the thing is with you, and that's why he is showing the tantrum in front of you. He's knowing you are showing the tantrum. If you will leave the place, the child is moving, following you. Okay, you can mark it when the child is doing something with tantrum.
हम लोग क्या करते हैं ना, वो जगह छूट के अगर चले जाते हैं, चल हमको फॉलो करने लगता है, फिर से शुरू कर वो हो जाता है। और एक बात है, एग्जांपल है, अगर कोई हॉल में या फिर मार्केट प्लेस में कुछ डिमांड हो गया उसका, बच्चे को हम लोग मना करते हैं, वो वहीं से टेंट्रम शो करता है। फिर अगर हम लोग कुछ तरीके से मतलब उसको समझा बुझा के वहाँ से ले आते हैं, कुछ देर बाद उसको वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है वो एनवायरनमेंट अभी नहीं है, वो चीज़ छूट गया, मुझे अभी नहीं मिलेगा। फिर अगर वहाँ वो प्लेस में जाऊँगी तो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होता है, वो चीज़ कहाँ पे है, किसके पास है, मुझे वो चीज़ कौन दिला सकता है। ठीक है? तो ये सब आ जाता है टेंट्रम के अंडर। और एक चीज़ मैंने शेयर किया था कि टेंट्रम जब बच्चा शो कर रहा है, अगर बच्चा कभी-कभी टेंट्रम शो कर रहा है, इट्स ओके। बच्चे हैं वो बिहेवियरल दिखाएँगे, उनका डेवलपमेंटल स्टेज है, वो बिहेवियरल दिखाएँगे। हम लोग ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा 0 टेंट्रम में भी ही रहे, नहीं, वो बच्चा दिखाएँगे। और एक चीज़ है, इट्स ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर बच्चा एक ही चीज़ में बार-बार टेंट्रम शो कर रहा है, दैट चाइल्ड नीड्स इंटरवेंशन। मतलब एक ही चीज़, जैसे कि मोबाइल देख रहा है, एक ही राइम्स मुझे देखना है, महीने तक वो एक ही चीज़ को जैसे पकड़ के बैठा है, दैट चाइल्ड नीड इंटरवेंशन। सेकंड थिंग, बच्चा अगर हर चीज़ पे टेंट्रम दिखा रहा है, तो भी उसको इंटरवेंशन चाहिए। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है टेंट्रम के बारे में। फिर आता है मेल्टडाउन। मेल्टडाउन क्या होता है? मेल्टडाउन होता है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, हाँ, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था मैंने, कि कभी-कभी आप भी कभी-कभी बोलते होंगे कि देखो वो क्या बोल रहा है, उसको खुद को भी पता नहीं है, वो इतना गुस्सा हो रहा था, वो क्या बोल रहा था, उसको भी खुद को पता नहीं है। ऐसा कुछ आपने सुना होगा क्या, कि कभी किसी को आपने देखे भी होंगे कि उन लोगों का हाइपरनेस इतना एक्टिवेट हो जाता है, उनका एंगर इश्यूज़, वो क्या बोल रहे हैं, वो इतना बुरे लोग नहीं होते, पर वो उस टाइम क्या बोल रहे हैं, उनको पता नहीं होना चाहिए। दैट इज़ मेल्टडाउन. For our children, this is the pure example of meltdown. For our children, when they are showing the meltdown, means they are not in their own control. They don't know what they are doing. So meltdown में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप टैंट्रम को कुछ मतलब टाइम के चलते हुए, कुछ समटाइम्स डांट के, प्यार के टाइम, और कुछ जैसे कि कंट्रोल में सिचुएशन को लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर इन केस ऑफ मेल्टडाउन यू कैन नॉट कंट्रोल, यू हैव टू कोऑपरेट। ओके। मेल्टडाउन के टाइम पे बच्चे को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। सो जब बच्चा मेल्टडाउन में, वी हैव टू काम डाउन फर्स्ट आवरसेल्फ, दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेल्टडाउन। और मेल्टडाउन में क्या होता है, बच्चे का जो एनवायरमेंटल सेंस है वो नहीं होता। ठीक है, जैसे टेंट्रम में होता है, बच्चे का जो मेल्टडाउन सेंस होता है वो उसमें नहीं होता। और एक चीज़ है, जब आता है मेल्टडाउन के बारे में, मेल्टडाउन में हमेशा आपका जो को-रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर काम करना चाहिए। को-रेगुलेशन ये होता है कि पहले तो हम बच्चे को हेल्प करते हैं कि बच्चा कैसे जो सिचुएशन है उससे वो बाहर आए। सेल्फ रेगुलेशन में बच्चे को हम लोग ये सिखाते हैं कि वो कैसे सेल्फ हैंडल करे, उसका जो इमोशनल रेगुलेशन है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं कभी इसके बारे में दूसरे टाइम हम लोग बात करेंगे। तो ये छोटा-छोटा चीज़ था जो हम लोगों ने हमारा लास्ट वेबिनार में कवर अप किया था। अभी हम लोग अगर आएँगे इंटरवेंशन के पार्ट में, तो मैंने इंटरवेंशन को 2 तरीके से हम लोग बात किए थे। एक है इमीडिएट, अगर बच्चा शो कर रहा है, मेल्टडाउन में है या फिर आपका जो टेंट्रम है, तो हम लोग इमीडिएट क्या कर सकते हैं, लैटर क्या कर सकते हैं। देखिए, इमीडिएट तो अगर बच्चा मेल्टडाउन में या टेंट्रम शो कर रहा है या फिर कुछ भी और बिहेवियर शो कर रहा है, तो पहले तो आपको सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सेकंड थिंग इज़ दैट इफ पॉसिबल लीव द प्लेस। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, मैंने मेरे बच्चे को लेकर एक फ्लावर एग्जीबिशन में हम लोग गए थे। मेरे बच्चे को सनलाइट से थोड़ा, वो लाइट को थोड़ा ज़्यादा नहीं देख पाता, पर मैंने सनग्लास भी लेना भूल गया था। हम लोग एक पार्ट को कवर करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, नाउ ही इज़ ओवर रीच्ड, अगर मैं वहाँ पे और घूमूंगी तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। सो हम लोग चले आए, तो एवरीथिंग इज़ ओके, मैनेजेबल। सो वी हैव टू, मन तो करता है कि हाँ रुकेंगे करेंगे, पर वी हैव टू, आई कैन से, compromise somehow and somewhere in these situations. And another thing is that the most important thing we should understand, meltdown जब भी बच्चा सो करने के लिए, वो मेल्टडाउन में जाने से पहले 99% केसेस में बच्चा सिम्टम्स शो करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को अगर साउंड में कुछ है, अगर आपने कहाँ पे गए होंगे कि कुछ जगह पे, तो बच्चा पहले तो 20 मिनट्स खुद को एडजस्ट करने के लिए टाइम लेगा, मतलब ट्राई करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो कान में पकड़ेंगे, या फिर वो कुछ पानी मांगेंगे, कुछ ऐसा कुछ वो शो करेंगे जो कि उनका डे टू डे लाइफ के बिहेवियरल में नहीं आता। आप अगर मार्क करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है मार्क करने के लिए, वो छोटा चीज़। तो ये एक चीज़ है इंटरवेंशन के अंदर, तो आप अगर मार्क करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर एक बच्चा मेल्टडाउन में होता है या फिर टेंट्रम शो कर रहा है, तो सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं।
एंड एवरी वन ट्राई टू से समथिंग टू यू कि ये कर दो, वो कर दो, पानी दे दो, कुछ भी वो लोग बोलेंगे. बट एट दैट टाइम डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर चाइल्ड. यू नो योर चाइल्ड, so you know how to handle them. Okay, instead of listening, I'm not saying though they are saying something bad or not, but instead of saying that, we're focusing the word of your child. That is important thing. Next thing is that don't talk too much. Whatever we are doing, most of the time हम लोग क्या करते हैं, बच्चा अगर मेल्टडाउन में है और जैसे कि कुछ टेंट्रम्स हो कर रहा है, ऐसे हम लोग उसको गाली नहीं, मतलब कुछ हर्ष वर्ड नहीं बोलते. कभी कभी स्ट्रीट में बोलते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, ऐसे तो बोलते हैं. उसके बाद भी बहुत सारे मतलब जैसे कि पैम्परिंग वर्ड्स भी बोल लेते हैं कि बच्चा काम डाउन हो जाएगा, नहीं ये करो, नहीं ऐसे नहीं करते, मैं तुमको दे दूंगी, बेटा रोना चुप करो, पानी पी लो. ऐसे कंटिन्यूसली हम लोग बात कर मतलब करते ही रहते हैं. इससे क्या होता है, बच्चा जब एक मेल्ट डाउन में है और एक कुछ बिहेवियर वो शो कर रहा है, उसका जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो एक अदर डायरेक्शन में है. आप जो उसको इनपुट दे रहे हो वो रिसीव नहीं कर रहा है, वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, तो उसको डिस्कम्फर्ट और लगेगा. तो इंस्टेड ऑफ वॉर, show everything, maximum thing in action. And another thing is that there is a best rule 6-second approach. You can say a short sentence but 6 sentence, then another sentence. You can say that, okay, I will see, like this very very small sentence you can use. And also don't raise your tone. आपका टोन थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए उस टाइम पे. और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को कुछ हाँ, कोई प्लेस में आप जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ है, यहाँ पे वो टैकल नहीं कर पाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा, तो पहले तो आप प्रिपेयर हो जाइए, बच्चे को भी प्रिपेयर कीजिए. जैसे कि कुछ स्माइली बॉल, कुछ भी सेंसरी टॉय. अभी तो आ रहा है एक सेंसरी ब्रश आ रहा है, बहुत अच्छा ब्रश है वो, उसको ले सकते हैं, बैंड ले सकते हैं, कुछ कंफर्टेबल शूज़, कुछ टॉयज़, हेडफोन, म्यूज़िक, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं. सो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं. सो ये था ऑल एक शॉर्ट वीडियो अबाउट yesterday topic. I hope this information is going to help you a lot. So this is all about today. Don't forget to subscribe Speezy for Special Need. Thank you all for your trust, love and support. We will meet soon in another video. Till then, bye bye. Jai Jagannath.